Good morning, students. Today we are going to do ratio analysis. So now, in last lecture in the class we have completed trade receivable turnover ratio. So now next ratio is trade payable turnover ratio. So now first of all you need to write in formula section. The formula of trade payable turnover ratio is net credit purchase divided by average trade payables. जैसे TR it means trade receivable turnover ratio was connected with sales and debtors. In same way this ratio is connected with credit purchase and trade payables. Now net credit purchase means what? So total purchase minus purchase return minus purchase minus purchase return, so and minus cash purchase. And average trade payable means what? So opening trade payables plus closing trade payables divided by 2. Now what do you mean by opening trade payable? So opening trade payable is equal to opening creditors plus opening bills payable. In same manner closing trade payables means closing creditors and closing bills payable. Now in the absence of creditors or bills payable, any one of particular, so whatever particular will be given, that will become trade payable. Opening particular will become opening trade payable and closing particular will become closing trade payable. Now in trade receivable turnover ratio we used to find average collection period because we are recovering amount from debtors. Now we are paying amount to creditors, so here we are supposed to find average payment period. So in terms of days, either 365 or 366 divided by TPTR, it means trade payable turnover ratio, and in terms of months, so 12 divided by TPTR. Now friends, जैसे कलेक्शन पीरियड में जो लेस टाइम था दैट वाज पॉजिटिव, क्योंकि पैसा जितना जल्दी मिलता है वो हमारे लिए अच्छा होता है. अब ये कौन सा रेशियो है? यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि हमें पेमेंट का कितना टाइम मिल रहा है. तो हियर जितना ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा दैट विल बी पॉजिटिव फॉर द फर्म, और जितना कम टाइम मिलेगा दैट विल बी नेगेटिव. सो नाउ हम आते हैं इलस्ट्रेशन 95. सो आपको रेफरेंस बुक ओपन करनी होगी, पेज नंबर 4.62 in that illustration 95. So what is given? So here from the following particulars taken from the books of Tata Press Limited, calculate trade payable turnover ratio and average payable period only in terms of days. Okay, so now first of all you have given total purchase and then cash purchase, then purchase return. So total purchase में से purchase return माइनस करेंगे तो आपको total net purchase मिल जाएगा, और उसमें से कैश परचेज माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्रेडिट परचेज. देन यू हैव गिवन क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर एंड क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग. सो हियर ट्रेड पेबल्स आर नॉट गिवन, मीन्स के बिल्स पेबल्स आर नॉट गिवन. सो अगर बिल्स पेबल नहीं है तो क्रेडिटर से क्या बन जाएंगे हमारे लिए? ट्रेड पेबल्स. ओके, so now net credit purchase is equal to total purchase which is 8,50,000. Cash purchase, so here cash purchase is 1 lakh and the return is 50,000. So 850 minus 1 lakh minus 50,000, so answer will be 7 lakh. Now average trade payable is equal to opening trade payables plus closing trade payables divided by 2. So here opening creditors become opening trade payables and closing creditors become closing trade payables. So opening trade payables are 1,20,000, closing trade payables are 1,60,000. So 120 plus 160 divided by 2, so 1,40,000, because 280 divided by 2 answer is 140. चलो अब ये वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला में यूज़ करेंगे. चलो नेट क्रेडिट परचेज कितना है? इट इज़ 7 लाख. एवरेज ट्रेड पेबल्स कितना है? इट इज़ 1,40,000. सो 14 5 आर 70, सो आंसर विल बी 5 टाइम्स. इसका मतलब हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने 5 टाइम क्रेडिटर से गुड्स बाय किया है. एनालिसिस. अब पेमेंट पीरियड फाइंड करते हैं. सो एवरेज पेबल पीरियड हमें इसमें फाइंड करना है ओनली इन टर्म्स ऑफ डेज. सो अब 365 यूज़ करना है या 366, कुछ भी नहीं बोला होगा तो हम उसको नॉर्मल ईयर समझेंगे, यानी आपको क्या यूज़ करना होगा? 365. इन केस अगर आपको दिया जाता है कि भाई लीप ईयर है या एनी इन्फॉर्मेशन you have given which is connected with leap year,
then only you are supposed to consider 366 days. Otherwise आपको क्या लेना होगा 365 days. Divide by TPTR. So 365 divided by 5. Answer will be 73 days. इसका मतलब ये होता है कि हमने क्रेडिटर से जो भी गुड्स बाय किया है उसको पे करने के लिए कितना टाइम दिया जा रहा है 73 डेज. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है. नेक्स्ट पे आते हैं 96. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल refer the question. So what is given? Opening sundry creditors, opening bills payable. तो ये क्या हो जाएगा opening sundry creditors and opening bills payable. ये हो जाएगा opening trade payables. Now same way closing sundry creditors and closing bills payable. ये क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा closing trade payables. Now you have given purchase return, purchase, कैश परचेज एंड परचेज रिटर्न. सो इससे आपको मिल जाएगा नेट परचेज. सो अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. सो नाउ पहले वर्किंग नोट पे आते हैं. सी क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू परचेज माइनस रिटर्न माइनस कैश परचेज. सो हियर परचेज इज 14 lakh, रिटर्न इज 1 lakh and cash purchase is 5 lakh. So answer will be 8 lakh. Now हमें ओपनिंग ट्रेड पेबल्स फाइंड करने पड़ेंगे. So opening trade payable is equal to opening creditors plus opening bills payable. So here you can see that opening creditors are 80,000 and opening bills payable are 3,000. So 80,000 plus 3,000, answer will be 83,000. Now same way closing trade payable means closing creditors and closing bills payable. So here closing creditors are 1 lakh, closing bills payable 17,000. so trade payables will be 1,17,000. अभी इससे काम नहीं होगा. अभी क्या फाइंड करना पड़ेगा एवरेज ट्रेड पेएबल. सो एवरेज ट्रेड पेएबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेएबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल्स डिवाइड बाय 2. सो नाउ यू कैन सी दैट ओपनिंग ट्रेड पेएबल्स आर 83,000, closing trade payables are 1,17,000 divide by 2. So 2 lakh divided by 2, answer will be 1 lakh. So now we are having both the values. तो उसका फॉर्मूला में यूटिलाइज करते हैं. क्रेडिट परचेज इज 8 lakh, ट्रेड पेबल्स आर 1 lakh. सो वेरी सिंपल, आंसर विल बी 8 times. यहाँ पे हमें पेमेंट पीरियड फाइंड करना है नहीं. ओके सो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 97. चलो पहले रीड करते हैं. टेक्स्ट बुक में देखो क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स 90,000, नेट परचेज 7,20,000, कैश परचेज 1,80,000. नाउ कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो. वेरी लिमिटेड थिंग्स हैव बीन गिवन. सो नाउ सी you have given only closing trade payables. So here information about opening trade payable is not given. It means what? Closing trade payable becomes average trade payable. This is important. So now चलो net credit purchase कैसे find करेंगे. तो here purchase is given and cash purchase is given. So purchase minus cash purchase. So 720 minus 180, answer will be 5,40,000. Now average trade payable, so it will be 90,000. so very simple, 540 divide by 90. देखो वापस बोलता हूँ क्यों एवरेज ट्रेड पेबल 90 होगा. सो हियर यू हैव गिवन ओनली क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स. सो इफ द इंफॉर्मेशन अबाउट ओपनिंग ट्रेड पेबल इज नॉट गिवन तो एक का एवरेज क्या होता है इटसेल्फ. सो क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स का एवरेज क्या होगा इटसेल्फ. आंसर विल बी 90,000. सो हियर आंसर आपका आएगा 6 times. बस सिंपल क्वेश्चन था, इतना ही फाइंड करना था. मेन पॉइंट क्या था क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 98. चलो 98 यहाँ पे आपको फाइंड करना रहेगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स. हाँ पर ये वाले क्वेश्चन हमारे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के बाकी है, उसको हम क्लास में बाद में सॉल्व करेंगे. चलो 98. सो व्हाट इज गिवन. अच्छा द आस्क इज कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. Now you have given total purchase, it is 15 lakh. Now very important, cash purchases are 25% of credit purchase. It means what? Okay, if the value of credit purchase will be given, then you can find the value of cash purchase, because
cash purchases are depend on credit purchase. So relation of cash purchase and credit purchase is given. And now trade payable turnover ratio is 4 times. So students हमें सबसे पहले इसको यूज़ करना होगा. चलो देखते हैं. Trade payable turnover ratio. So formula will be credit purchase divided by average trade payable. So now ratio is 4 times. Okay. Now credit purchase. तो in question it is not given. हाँ, परचेज इज गिवन, बट हमें क्या फाइंड करना है? क्रेडिट परचेज. उसके लिए परचेज में से कैश परचेज माइनस करना पड़ेगा. चलो एक रिलेशन फाइंड करते हैं. ये देखो, समझते हैं इक्वेशन कि आपको बोला गया है कि कैश परचेज आर 25% ऑफ क्रेडिट परचेज. इसका मतलब कि अगर हमने क्रेडिट परचेज को 100 लिया, सबसे पहले फर्स्ट लाइन देखना, अगर हमने क्रेडिट परचेज को 100 लिया तो कैश परचेज उसका 25% है, तो वो 25 हो जाएगा. सो टोटल कितना हो जाएगा? 125. इसको सिंप्लीफाई करो. सो 25 कॉमन, 1 4 एंड टोटल विल बी 5. सुनाओ, इसका मतलब कि क्रेडिट परचेज जो है वो 4/5 है. समझ में आ रहा है? क्रेडिट परचेज कितना है? 4/5. सो क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू 15 लाख इंटू 4/5. सो आंसर आएगा 12 लाख. इसको यूज़ करेंगे हम फॉर्मूला में यहाँ पे. सो क्रेडिट परचेज 12 लाख यूज़ किया, तो यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करके मिल जाएगा एवरेज ट्रेड पेबल विच इज़ 3 लाख. चलो ये मिल गया. अब काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमें फाइंड करना है ओपनिंग टीपी, इट मीन्स ट्रेड पेबल्स, एंड क्लोजिंग टीपी. चलो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ करते हैं. एवरेज टीपी इज इक्वल टू ओपनिंग टीपी प्लस क्लोजिंग टीपी डिवाइड बाई 2. चलो एवरेज टीपी हमने ये देखो यहाँ पे फाइंड किया, आंसर इज 3 लाख, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 3 लाख. नो रिलेशन ऑफ ओपनिंग टीपी एंड क्लोजिंग टीपी इज गिवन. लिसन केयरफुली. ये क्वेश्चन आया था CBSE 2025 में. क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स आर 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल. सो 2 टाइम्स मोर नहीं है. लिसन केयरफुली, 2 टाइम्स है. तो अगर हम ओपनिंग ट्रेड पेबल को x लेते हैं तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल विल बी 2x. देखो हमने लिखा है यहाँ पे ओपनिंग टीपी x, क्लोजिंग टीपी 2x. चलो सिंप्लीफाई करो. 3 लाख इंटू 2 6 लाख एंड x प्लस 2x 3x. सो x विल बी 2 लाख. सो व्हाट, हाँ हमने x किसको लिया था? सो x मीन्स ओपनिंग टीपी. सो ओपनिंग टीपी इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 लाख एंड क्लोजिंग टीपी इज इक्वल टू 2x. इट मीन्स 2 लाख इंटू 2, द आंसर विल बी 4 लाख. सो यहाँ पे हमें मिल गया ओपनिंग टीपी एंड क्लोजिंग टीपी. नाउ 99. मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. व्हाट इज गिवन? कैश परचेज 25% ऑफ टोटल परचेज. तो देखो हमने यहाँ पे बनाया है कैश परचेज जो है उसका रिलेशन यू हैव गिवन इन टर्म्स ऑफ टोटल परचेज. तो देखो मैंने यहाँ पे टोटल परचेज में कितना लिखा है? 100. सो इफ द टोटल परचेज 100 तो कैश उसका 25, तो वहाँ पे 25. नाउ टोटल परचेज में से इफ द कैश परचेज इज 25 तो क्रेडिट परचेज विल बी 75. वेरी सिंपल. नाउ इसको सिंप्लीफाई करो. सो 1:3, इट मीन्स टोटल परचेज विल बी 4. तो हमें एक रिलेशन मिल गया है. किसका रिलेशन? तो जो टोटल परचेज होगा उसमें कैश कितना होगा और क्रेडिट कितना होगा. आगे रीड करते हैं. नाउ हियर यू हैव गिवन, रीड द क्वेश्चन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 10 लाख, देन ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो वेरी गुड, RFO पे ही GP बेस है. देन ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज गिवन. चेक करते हैं. चलो RFO और GP हाउ दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, याद करो फटाफट. RFO एंड GP. सो RFO एंड GP यानी क्या हो सकता है? कॉर्फो. सो हाउ वी कैन फाइंड कॉर्फो? सो RFO माइनस GP इज इक्वल टू कॉर्फो. RFO माइनस GP इज इक्वल टू कॉर्फो. So now here RFO is given, it is 10 lakh and GP is 2,50,000. So जैसे हमने RFO में से GP माइनस किया, the answer is Corfo, it means cost of revenue from operation, that is 7,50,000. So Corfo मिल गया. अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है. Corfo की फॉर्मूला क्या है? So जो बेसिक फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. नाउ सी you have given opening inventory 2,50,000, closing inventory 5 lakh. So Corfo is also given. So what is not given? Purchase. तो यहाँ पे इस फॉर्मूला से आपको क्या मिल जाएगा? परचेज. सो Corfo is equal to opening inventory plus purchase minus closing inventory. So Corfo is 750. Opening inventory is given in the question 2,50,000.
परचेज इज नॉट गिवन एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 5 लाख। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा परचेज एंड द आंसर ऑफ परचेज इज 10 लाख। नाउ स्टूडेंट्स, हमें परचेज नहीं फाइंड करना है, हमें तो क्रेडिट परचेज फाइंड करना है। देखो बिगिनिंग में हमने रिलेशन फाइंड किया है, टोटल परचेज में क्रेडिट कितना है, इट इज 3/4। सी ना 3/4। सो नाउ क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू 10 लाख इंटू 3/4। सो आंसर विल बी 7,50,000। नाउ TPTR is equal to credit purchase divided by average trade payables. So now here the credit purchase is 7,50,000. TPTR is 3 times. So now what is not given? Average trade payable is not given. So average trade payable is equal to 2,50,000. So हमारी गाड़ी एवरेज ट्रेड पेबल तक पहुंच गई, लेकिन फाइन क्या करना है? हमें फाइन करना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल। सुना, average trade payable is equal to opening trade payables plus closing trade payables divided by 2. So now average trade payable is 2,50,000, 2 को हमने ऊपर पहुंचा दिया। So now relation is given. See what is given? Closing trade payables were 2,50,000 in excess of opening trade payable. इसका मतलब होता है कि closing TP 250 ज़्यादा है किससे? opening TP से। तो हमने opening को x ले लिया, तो closing कितने हो जाएंगे? x plus 2,50,000। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 250 इंटू 2 5 लाख हो गया, वो 250 हमने यहाँ पे ले लिया तो -250 एंड x प्लस x इट मीन्स 2x। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो आंसर आएगा x का 1,25,000। अब हमने x किसको लिया था? ओपनिंग ट्रेड पेबल। सो ओपनिंग ट्रेड पेबल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1,25,000 एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स जो थे 250x है, सो 125 प्लस 250, सो आंसर विल बी 3,75,000। सो आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। सो यहाँ पे आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो खत्म होता है। ओके, थैंक यू।